Very warm welcome to your own show, Gurseema's Gupshup. Yes, in every episode, I am keen to share the journey of the soul who is aspiring to soar high in the sky. So this time also, Gurseema has got a beautiful girl here at my set of the Gupshup. So very warm welcome to Kanan, the poetess, and the coming up as an engineer. Hopefully. So it's something very, I mean, two very different poles. Like Exactly. poetess, that is something poetesses, dealing with nature, Yeah, dealing yeah. with very, very soft elements of the Yeah, life. yeah. And engineer is totally, and it is very, very technical part. Yeah. So you are the combo of both too. Yeah, both left and right brains are coming together Oh, at how this point sweet, of life. how yeah. sweet. So Karan, we have our first segment that is Okay. आपकी कहानी आपकी जुबानी Okay. रूबरू. हमारे जो ऑडियंस है आपसे रूबरू हो जाए उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं. Okay, so I am Kanan. I am basically a poetess by passion or it's becoming a profession. I just don't know. Right. I'm pursuing my BTech computer science from GNDU Amritsar. From GNDU. So if I ask, like, how come that it was poetry came first or engineering passion came Poetry first? is with me from 6th standard, I must say. कि Okay. वो कुछ लिखते रहना, rhyming So you करते रहना. started writing poem when you were in class 6? या तो लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देखना एंड होता नहीं है कि यूट्यूब पे लोग आके पोएट्री कर रहे हैं तो उसी की कॉपी कर देना बस कुछ अच्छा. अपने वर्ड्स इधर उधर करके टॉपिक चेंज कर देना. याद है कुछ पहली पोएम कौन सी लिखी थी? जी मेरे को याद है कि पोएट अरोड़ा करके गौरव अरोड़ा करके एक पोएट आते हैं अभी भी हैं. अच्छा जी. तो तब तो उन्होंने जस्ट स्टार्ट करा था तो उनकी एक आई थी लाइक कॉमन मिडिल क्लास पे तो मैंने उसी को रेप्लिकेट कर दिया था. Okay. तो इट गोज लाइक सपनों की खुली आवाम में इस देश के हर गांव में मैं खून पसीना एक कर अपना आशियाना बनाता हूँ मैं इस देश की आम जनता कहलाता हूँ. How sweet. सो इट्स लाइक ये मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई करके आइडिया उनका था मॉडिफाई मैंने करी. आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड तो एवरीवन वाज लाइक वाओ क्या लिखा है. Because this is something in class 6. Yeah. Student is not the words that you have used. बिल्कुल. It is something very special. एंड आई गेस ये जितनी भी पोइट्री है जितना मुझे अब तक रियलाइज हुआ आई एम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली कि सिर्फ 3 लोग हैं मेरी फैमिली में मम्मा पापा और मैं. Okay. तो पेरेंट्स वर ऑलवेज बिजी इन देयर स्टफ लाइक माय मदर ऑलवेज ट्राई टू बी विद मी. Right. बट एक बच्चे के लिए आप कितना ही कर लोगे लाइक because एज अ you were फ्रेंड. not having any sibling. बिल्कुल. So you opted poetry as your good friend and you started writing. You can say that because my mother was always there for me. She always tried to be there for me. Like मेरे को कोई भी competitions होने उन्हें सब कुछ prepare So, if करवाना. I ask about your parents, your dad is into what? Like he's in private sector. तो Okay. वही होता था सुबह जाते थे रात को आते थे. Right. And your mom? Like housewife of course. She's a homemaker. But that difference between the mindsets you can say and the feelings कि बच्चा हर बात नहीं share कर पाता है. Right. And I had a lot of time क्योंकि मेरे पास कोई family मतलब कुछ So was siblings it at नहीं that है. time you were having some good friends also? Of course, but school life में I don't think so कि उतने good friends होते हैं. Max to We max. are not that mature at that Yeah, time, yeah, so yeah. it's just sharing the food or Pencil playing, share, हाँ. and that's it. उसने मेरी पेंसिल ले ली बस यहीं तक थी हमारी फ्रेंडशिप्स भी. Okay. So yes, I was an observer from the very beginning. I have realized it कि मैंने Right. हर चीज़ observe करनी चाहे वो person का behavior है चाहे वो nature है. Right. मैं like मेरा school almost 1 hour के distance पे था. I used to go in bus and मैं सारा टाइम खिड़की के बाहर ही देखती रहती थी. So I was known for this कि कुछ भी बाहर चल रहा है. So you were like the child who was very close to nature, and you Yeah. were the person who got inspired and aspired by the elements of nature. Yeah, you so can you say were it. not connected to the people around, but you were Exactly. connected to the supreme environment, I can say. You can say that. Okay. And मेरी mostly poetries में भी यही words रहते हैं. चांद रहता है तारे रहते हैं वो हर किसी शायर की poetry में रहती हैं. But हाँ. So if I say कि आपने अगर 6th standard में start किया till now, do you have any idea, any counts that how many poems you have written? ओके सो आई हैव अ डायरी. मेरे पापा की जो कंपनी है वो डायरीज नहीं देते तो उस Okay. पे अभी तक रेड कवर चढ़ा हुआ है एंड इट्स लाइक 32 और 42 अराउंड इतनी नज़में हैं बेसिकली. नज़में. एंड मेरी होती अगर आपने सुनी हो मेरी तो वो होती बहुत लेंदी है तो Okay. 2-3 पेजेस की. तो किसी खास चीज़ पे आपकी एक नज़म हम आई वांट जो आपको लगा दिस इज समथिंग मास्टरपीस ऑफ कानन तो वी कैन लिसन. आज नज़म सुनने का मन मेरा भी है. ओके तो मैं कहूँगी कि अगर मैंने तब से लिखना शुरू करा मेरे टॉपिक्स चेंज होते रहे I हैं agree, राइट I कि agree. पहले जितनी भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं अब मैं आपको अपना बेस्ट तो नहीं सुना सकती बिकॉज आई डोंट हैव द कंटेंट I राइट नाउ got it. बट आई कैन गो फॉर द लेटेस्ट Right. वन जो मैंने अभी चलेगा. लिखी It would थी. be the best only, I know. ठीक है तो इसका आई गेस मैंने टाइटल लिखा था कि मैं कुछ नहीं बदलूंगी कि बहुत से लोग होते हैं कि मैं पास में जाके ये बदल देता
अच्छा, मैं कुछ नहीं बदलूंगी, हम इट इज समथिंग रिलेटेड टू यू, टू द एनवायरनमेंट, कुछ नहीं बदलूंगी आसपास का, कि कनन का कुछ नहीं बदलूंगी। जो मेरे साथ मतलब जितनी मेरी अब तक जर्नी रही है, मेरे को कहीं पे कुछ मौका मिल जाता, अगर मेरे को मौका मिले कुछ जाके चेंज करने का अपने पास में, आई वोंट चेंज एनीथिंग, यू वोंट चेंज, आई वोंट चेंज एनीथिंग। सो इट्स अबाउट दैट कि जो मैं आज हूँ, मैं खुद को पसंद, बहुत एक हार्ड वर्ड हो गया, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। आई वुड लाइक टू लिसन आपकी नज़म, चलें। ओके, इट गोज लाइक कि सफ़र इतना प्यारा है, कि सफ़र इतना प्यारा है तो यादें कितनी हसीन होंगी, और ये जो रोज़ मैं खुद से हार कर सो जाती हूँ, और ये जो रोज़ मैं खुद से हार कर सो जाती हूँ, इन नाकामियों में कितनी तस्कीन होगी। तस्कीन यानी कंफर्ट, तो इन नाकामियों में कितनी तस्कीन होगी। ब्यूटीफुल। और एक मेरी दिली हसरत है कि कोई मुझे जाने पर समझे ना, और एक मेरी दिली हसरत है कि कोई मुझे जाने पर समझे ना, क्योंकि समझ कर अनजान बने, इन्हीं हसरतों की तौहीन होगी। हाय 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 हाय, ब्यूटीफुल। इन्हीं हसरतों की तौहीन होगी। एंड देन इट गोज लाइक, गर सिमटी ये ज़िंदगी एक किताब में, मैं कुछ पन्ने बार बार पलटूंगी, कई किस्से दोहराऊंगी, मैं सबको सही साबित कर खुद को गलत ठहराऊंगी, और जहाँ जिक्र होगा उनकी खामियों का, और जहाँ जिक्र होगा उनकी खामियों का, मैं पन्ना पलट कर आगे बढ़ जाऊंगी। How sweet! I love the expression. Thank you. Feeling so good that it happened for the first time. My audience knew कि it's been never की शायरी कभी हुई नहीं है हमारे set पे. Yeah. So my cameraman, my team, all are sitting. The boys are sitting and seeing कि something new it is happening. Something new So I'm is really going happy. Okay. तो अच्छा ये हो गया, फिर आपने जब लोगों के सामने पोइट्री परफॉर्म करनी शुरू करी, स्टेज होस्ट करनी शुरू करी, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ इट स्टार्टेड? तो बेसिकली मैं जब फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने आई थी, तो हमारे स्कूल में एक ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पे मेरे एक साया करके कविता लिखी थी, बहुत प्यारी है, उसमें भी वर्ड्स मैंने ऐसे ही यूज़ कर रखे हैं। ओके। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम था, बट जो मेरे को लाइव प्लेटफॉर्म मिला वो मेरे को मिला टाइमलेस पे। या आई स्टिल हैव माय फर्स्ट वीडियो, थैंक्स टू ऑनरेबल सीए सर दविंदर सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ऑफ दिस आवर city Amritsar has got the beautiful platform for the aspiring poets, for the writers, for the speakers, anchors, and thank you so much. या तो अगर आप फर्स्ट वीडियो मेरी देखोगे, अगर आप रील्स में भी देखोगे ना, मेरे हाथ में शिवर कर रहे हैं। वो क्योंकि देयर वर लाइक 20 people or 25 people, नॉट मोर देन दैट, बट वो एक होता है कि स्टेज पे आके सबके सामने ऐसे परफॉर्म करना, एंड वो आज तक है नर्वसनेस, वो बस ये कि शिवर्स कंट्रोल हो गए हैं, वो नर्वसनेस आज तक है, लाइक एवरीवन इज लुकिंग एट यू एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, the ears are eager to listen something, what exactly you going to speak. एंड ये चीज मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पे यंग पोएट्स बहुत कम है, लाइक जैस्मिन मैम इज देयर, रितु मैम इज देयर, दे आर यंग बट दे आर लाइक ओल्डर देन लाइक एज, they have got the experience of बिल्कुल। life. अमित राठी सर इज देयर, ही इज लाइक अमेजिंग इन पोएट्री, right? Suleiman Sabri is there. I have listened few of them and they are really good. Yeah. So वही चीज़ है कि स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ अभी, but it feels like home, जैसे कि वो ट्रीट करते हैं सबको, even देवेंद्र सर and Dolly ma'am also. Both of them are very sweetheart people. Yeah. एंड मैम आर्टिस्ट की ये बात तो है कि आर्टिस्ट मेरी उम्र का हो, किसी भी उम्र का, वो आर्टिस्ट ही है। Exactly. आप उससे किसी भी टॉपिक पे बात कर लोगे, वो आपको आपके लेवल पे आके बता ही देगा। Very true. I liked it. एंड मैंने ये चीज़ रियलाइज किया कि आर्टिस्ट की दुनिया हमेशा नॉर्मल लोगों की दुनिया से डिफरेंट हटकर होती है। तुम कभी तभी वो आर्टिस्ट होता है, बिकॉज आर्ट को ऑब्जर्व करने के लिए यू नीड टू हैव सम डिफरेंट हार्ट, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम लोनली। अगर आप इतने लोगों के साथ आपका कनेक्शन है मगर आप अपने आप को कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हो, यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन रिफ्लेक्ट। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि मुझसे बहुत सुलझे हुए लोग भी हैं मेरे एज के, बट दे डोंट राइट और दे डोंट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, लाइक हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। वेरी ट्रू। पोएट्रीज और समथिंग, राइट? तो इसका कोई अगर लिखता है, इसका मतलब ये नहीं उसको बहुत समझ है, पर वो बहुत अच्छे से समझा सकता है कि उसको कितनी समझ है। राइट। तो ये रहता है पोएट्स का। अच्छा, आपके ये तो हो गया, आपके फ्रेंड्स। Okay, do you have some friends? Yeah, I have touchwood. I have really good friends. I have made them in hostel, and they are like, I'll just मेरे को कोई भी ज़रूरत होगी, there are like 2 to 3 people. So my question was this, because I felt because you are a poet and poets are always sometimes sitting lonely writing, so you are proper a social person. No, it's not like that. I know a lot of people. I do spend time with my friends, but I have my me time. मैं अकेले जाके छत पे बैठ जाऊंगी, अकेले कॉफी पीने चली जाऊंगी. Everyone is like, okay. So you enjoy to have coffee all alone. मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ मैम।
That's nice. मैं बहुत Or खुश हूँ। I always feel that an artist, if that person is alone, only Right. then she or he can create a masterpiece. बिल्कुल So the masterpiece, if it has to be created, of course, you need some space with the me time. एग्जैक्टली और वो मेरे को स्टार्टिंग से मिला ही है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली Right. तो आई एम जस्ट कैरिंग इट फॉरवर्ड कि मेरे को कुछ भी Perfect, लिखना होता है perfect, सोलेस में perfect. बैठ जाओ एंड यू जस्ट गेट इट यू डोंट नो So, as you are from a nuclear family, but your parents have been, within the work. Yeah. So, if I say, what are your marriage plans? Was it that something that people around are always with the pressure कि शादी कर लो, शादी कर लो? ओके आई वुड लाइक टू मेंशन दिस मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ एंड माई पेरेंट्स आर लाइक बच्चे जब छोटे होते हैं उसको बोलते रहते हैं ना तेरे को शादी करनी तेरे को दूसरे घर में जाना है हाँ जी, हाँ जी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक नहीं बोला है कि How तू sweet. पराया धन है या कुछ है मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ कि ये course काम में- सीख लो, दूसरे घर जाएगी तो वो बिल्कुल। क्या बोलेंगे? So Yeah. this is something that the daughters always listen to this Yeah, right from the starting. yeah. कि ये काम ऐसे करो, मामा तुम्हारी माँ थोड़ी ना बैठी होगी, दूसरे घर बिल्कुल। जाके कैसे करोगी? हाँ मतलब मजाक में चलता है एक दो बार बट माई मदर इज ऑलवेज लाइक कि बेटे अपने पैर पे खड़ी हो जाओ उसका जो मर्जी कर हाँ, that's nice. इवन माई नानी इज ऑल्सो लाइक दिस आप कहोगे कि पुराने जमाने क्या कुछ But they है believe कि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, जब हाँ। तक आप you are not independent enough, या you may not pursue the this नो of एट marriage दैट आई option. गेस आज के टाइम पे तो ये बच्चे पे ही है उसको कब करनी है लाइक पेरेंट्स किस हद तक ही कर लेंगे बट द थिंग दे हैव गॉट इनटू मी दैट यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन This is the best thing which I liked about एग्जैक्टली तो दे हैव ऑलवेज टॉट मी कि बेटा कल को किसी को ब्लेम नहीं करना अपनी सिचुएशन के लिए यू हैव गॉट एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू right. जस्ट स्टैंड एट एनी पॉइंट लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं आसपास तो आई ऑल्सो टेल देम कि ठीक है बट जो डिपेंडेंसी आ जाती है ना एक उसके ऊपर निकलना इज द मेन पर्पस कि जो इस एज में होना चाहिए right. फ्रॉम पेरेंट्स और नेक्स्ट पर्सन और एनीथिंग क्योंकि आज के टाइम में आप पिछले टाइम में भी ऐसा था पीपल जस्ट यूज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट Compromise, exactly. and the people who have compromised they don't want anyone to compromise in future that is the point That and is the point. yeah Okay, ये चलो थोड़ी बातें हो गई आपकी. If I say that in your entire journey, was there any point where you felt it was a challenging time, and anyone else who helped you to come out of it? okay so yeah there were a lot of challenges अभी Because recently every journey has got the बिल्कुल, हर pros किसी and के- cons everywhere. हर किसी के अपने लेवल पे challenges हो सकता है और हम कुछ बड़ा छोटा नहीं कह सकते Exactly. कि उसका कि अगर That's because that reveals the chapter of one's life. Exactly. हर एक की जिंदगी का एक अपना चैप्टर है, उसके अपने pros and cons है, उसके अपने challenges है, उसके बिल्कुल। अपने ख्वाब है. बिल्कुल तो लाइक So I would like to listen ऐसा कुछ जिसने कनन को और मॉडिफाई किया, जिसने कनन को और तराशा. ओके सो आप अगर थॉट्स की बात करेंगे तो लाइक +1 में मेरे लाइक अंकल कह लो मेरे जो मामू हैं उनकी बहुत क्लोज थे तो ही पास जब है तो उसके हाँ। बाद मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है लाइक कल बंदा बहुत फिट है एंड आज ये होगा तो उस पॉइंट पे एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई थी कि ओके बेटे दिस इज लाइफ This is life. अब है अब It was नहीं- like 24 hours back. You met a person was there in your life. Mamu is here. Yeah, Mamu. yeah, yeah. And then after a couple of hours. months or something everything was and that person does not exist anymore कि इतना उनको कुछ करना था इतना ज़्यादा पैशन था उनमें Right. आखती कि अब ये कर दूंगा उनके फ़ोन में सारे वो चार्ट्स बने पड़े थे वो नोट्स नहीं करते अगले दिन के सब बने पड़े थे बट इट वॉज ऑल देयर See, this is what life एग्जैक्टली is. तो वहाँ पे जो गूज बम्प्स मिले मेरे को उस पॉइंट पे एंड एज वॉजेंट मच सो वो बहुत So that gave a very strong impact on your thought Exactly. process, on your personality. अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ ना मेरे को हर एक चीज इम्पैक्ट कर रही है इट इज नॉट ओनली वन थिंग कि अभी रिसेंटली कुछ हुआ है Right. तो उसने मेरी बहुत सी आइडियाज को शिफ्ट करेगा ओके दिस इज द वे यू लिव दिस इज हाउ यू डील विद पास्ट और मेमोरीज Right. दिस कांट कैरी इट थ्रू आउट द लाइफ तो वहाँ पे एंड अगर आप बात को किसी ने हेल्प करी है currently I have my friends I will mention it again and again like they have Any helped few me. names that you would like to take? Diya is there Manpreet is there Akriti is there like Diya, Manpreet, Akriti. yeah they are always Archana is there Archana of is course. there. Yeah तो she has always been with me कभी मुझे I ज़रूरत always होती feel है। if you have a very good friends around, it means you are really the blessed one. Because Exactly. these days things are very materialistic, bonds are बिल्कुल, very materialistic. बिल्कुल। Every person, even if talk for a second, he or she has some mindset कि ये बात पूछनी है करनी है, and when it is done, so it is done. So if you have good friends, it means you are the blessed one. That's what I Right, feel. like good friends in the sense they won't speak anything behind your back. Number one point. That's ये nice. you just कि अगर जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे भी कुछ नहीं बोलेंगे and they are always there. They are
on your face the way they are on This your is the back. best thing. This is the best Yes. thing to have, because this is the rarest of the quality that is existing in today's world. And you have to reflect it back. If you are reflecting it back, only then you are getting it. You This have is to keep true. this in mind. This is true. कि वही वो भी कोट आ रही थी कि प्यार मिले ना मिले यार अच्छे बना के रखो. प्यार मिले या ना मिले, यार अच्छे बना वो के throughout रखो. the life है. So this is all about my friend circle. Yeah. Okay, so Kanan, as I consider we few couple of minutes we are left with, but Yeah. few more things which I want you should share. कुछ और खास जिंदगी के बारे में, अपने सफर के बारे में. मैम सफर तो ऐसा है कि चल रहा था, अभी भी चल रहा है और एंड तक चलेगा. ऐसा चलना चाहिए, चलना चाहिए. कुछ है नहीं है कि एंड पॉइंट. हाँ कुछ माइलस्टोन्स है, कुछ गोल्स हैं. हाँ. मुझे है कि पोइट्री को एक लेवल पे लेके जाना है कि Okay. पोइट्री इनहेरिटेड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. मुझे नहीं पता कि कहाँ से आई है, मैं कैसे लिख लेती हूँ. Right. और कई बार होता है कि मैं लिख के देखती हूँ कि मैंने क्या लिख लिया है. That's true. That's true. तो It is a talent which is inborn. या आप टैलेंट कह लो या कुछ इंट्यूशंस आती हैं, मतलब आप लिख के देख रहे हो कि आपने क्या लिया. तो आई ऑलवेज प्रेज दैट कनेक्शन यू हैव, दैट you call it a thing, a person or something, but there is something in the universe. I agree. And I have realized it lately, like मैं 3 days के लिए isolation तो कह सकते, but I was all alone. Okay. Then somehow I realized it कि yes there is something, कि उससे पहले तो बच्चों का होता है ना कि भगवान जी सब ऐसे मतलब फॉर्मेलिटीज करते हैं. Right. Of course लोग हमें फॉर्मेलिटी समझाते हैं, एंड जब उसका लॉजिक नहीं मिलता we just deny it. We just deny it. बट उस फॉर्मेलिटी के ऊपर भी कोई चीज़ है जो कोई मतलब आजकल लोग बात करने लगे हैं, हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है. आई हैव माई ओन डेफिनेशन एंड येस देयर इज अ कनेक्शन दैट्स ड्राइविंग आई गेस एवरीथिंग. So you always felt there is some internal drive, which push you to move ahead on the chosen path. Yeah, बिल्कुल internal and maybe external also, like everything fitted in the entire situation. That's something I always appreciate. Right. And Kanan, if I say that आजकल, because people are in a hustle, they are running here and there, we don't have the time. Do you feel that the time we are living in here, the poetry is something, it's very calm and serene. Yeah. So do you think that it will match with the vibes of the today's world? बिल्कुल मैम, क्योंकि जिस चीज़ अभी इसकी ज़रूरत है, बात ये नहीं है कि वो क्या सुनना चाहते हैं. इसकी ज़रूरत हर किसी को रहती है किसी ना किसी पॉइंट पे. जो टॉपिक उनको रिलेट करेगा, टच करेगा, वो किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में देखेंगे ही देखेंगे. Right. हार्ट ब्रेक है, वो रैप सुन लेंगे, वो सेम पोइट्री भी सुन लेंगे, क्योंकि उनको टॉपिक से मतलब उनको है. टॉपिक से. So you mean that the poetry now, even in any of the world, maybe the past, maybe the present, maybe the future, the poetry has got a very strong element in humans. बिल्कुल बिकॉज मैम यहाँ पे वर्ड्स हैं लाइक और वर्ड्स, जैसे कि अगर मैं पेंट की बात करूँ, आर्ट की बात करूँ, मैं डेली बेसिस पे पेंटिंग नहीं करती तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट नहीं करूँगी, पर आप बोल तो रहे हो ना. अब आपकी एक बात को मैं किसी और तरीके से बोल दूँ, I agree. you will be like wow. Right. Kanan, if I say कि Kanan is like this, and if I say what about marriage plans? अभी फिलहाल के लिए तो मैरिज प्लान्स ऑफ कोर्स की नहीं है. आई डोंट थिंक. No, I just want to know, is it something because in today's world the girls are कि आप अपना शहर, अपने parents, अपना एक पूरा environment उसको छोड़कर you will find okay to go somewhere out? Okay, so first of or you all, want the other person to relate? Okay, it's not like this. First of all कि अगर मेरे पेरेंट्स हैं, आई एम इन अ न्यूक्लियर फैमिली, Right. मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के लिए है. आई विल Okay. जस्ट मेक श्योर दैट okay कि their comfort, and next thing what I'm going for is not the family or not the societal pressure. I'm going for the person. You're going for the I know person. I have to live my entire life, so maybe I need a person, maybe not. Okay. So if I find a companion in future कि मुझे लगता है कि compatibility है, Compatibility क्योंकि है. पूरे टाइम तो compatibility तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी नहीं Parents रहती के है. साथ. That's something very true. बिल्कुल. But you need to be mature if you would like to pursue one relationship further. बिल्कुल. And So आजकल if I say, my mom was saying in that कि आजकल तो बच्चों का system ही अलग है. They are together at a moment and they may separate at the other moment. So this is something, the relationships have become very dicey. The things have become, it was always that my mom, like I mentioned to my mom was telling कि घर में जो भी होता था हमें पता था कि हमने यहाँ पर ही रहना है. 30-35 साल हम उसी घर में रहते हैं. But today the girls are like this. They may or they may not sustain even for 30-35 days. ओके, सो द थिंग इज कि हर किसी की ना एक प्रायोरिटीज के लिए बेंचमार्क्स होते हैं कि सब पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इन पे नहीं होगा. इट कैन बी सेल्फ रिस्पेक्ट. अब सेल्फ रिस्पेक्ट के सब पे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, एंड यू हैव टू रियलाइज दिस. इवन इन फ्रेंडशिप्स आल्सो देयर इज नो पर्सन अराउंड यू हु हैज नेवर हर्ट यू. देयर इज नो वन. वहाँ पे समझने की बात होती है. But it is that you agree that yes, the जो institution है marriage का, it should sustain in life, because अगर ये नहीं होगा तो society won't be that stable one.
ओके सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बनाई सोसाइटी ने है, वो एक टाइम पे बनाई थी. Right. नाउ टाइम हैज चेंज्ड, Time has changed. सोसाइटी हैज चेंज्ड, तो कुछ चीजें चेंज होनी ही थी. नाउ द ट्रूथ इज दैट एवरीवन लुक्स फॉर अ डीपर कनेक्शन. दैट्स Deeper connection. तुम कहीं पे भी चले जाओ, if people are changing their partners or something, they are also looking for something. The point is that they have options. They have options. They have options. Initially, I feel that it was something कि our parents were कि बस this is one person. Yeah. जो भी है भगवान ने दी, इसी के साथ you are supposed to बिल्कुल, spend. बिल्कुल. That's so sweet. My cameraman has given a signal कि मैम 2 minutes left. So इस अखीरले 2 मिनट में कुछ और बातें या कुछ अच्छी memories या any message that you would like to deliver through this episode? ओके सो इस टॉपिक को क्लोज करते हो कि अभी तो मेरे सच में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सफर है तो अभी I agree. कुछ भी क्लियर नहीं कुछ भी है clear. इन I agree. फर्दर, बट Very soon when things will be clear, she'll reach at some Yeah. high goals. We will call her again for the Gupshup, guys. I'll be here also. We will launch the second I'll episode with definitely be here, Karan. I get it. Okay. And yeah, it's I would like to give this message कि जैसे कि आपका भी initiative है for the underprivileged, that's a great initiative. I would like to say that to my entire की जो मेरे peers हैं, to my entire generation की stop ranting at certain points. हर चीज़ पे मतलब Stop ranting. हर Okay. चीज़ पे like गुस्सा करने की या बुरा मनाने की बात नहीं है. वो short temper. आजकल सबका short temper हो चुका है. प्रॉब्लम नहीं है, challenges है. Like people How consider sweet. This everything line as is so good. problems. ये जो भी चल रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है. Right. ये challenges है. And this is a very rare statement that I have got it. Exactly, क्योंकि आप किसी भी मुझे नहीं पता किसी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, मैं वहाँ पे Right. ये नहीं बोलूँगी चैलेंज है, पर उस प्रॉब्लम से साथ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो चैलेंजेस हो सकती हैं. वो challenges हो क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है ये, मैं कितनी करती रहूँगी कि अच्छा आज के टाइम पे एंजाइटी बहुत कॉमन है. Anxiety is ये there. Very true. डिप्रेशन अब है भी है कि नहीं भी, लोग तो इसमें कंफ्यूज होकर रह जाते हैं. I agree. बट कुछ भी है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंज है. यू हैव टू ओवरकम इट एंड You यू have to overcome it. हैव टू ओवरकम इट. And you will able to if you try, if human बिल्कुल. because God has given that powers to human being that बिल्कुल. we can manage the issues, manage the problems and come out of it. बिल्कुल. एंड इफ यू रियली नीड हेल्प, गॉड विल सेंड. How sweet. God it was a will lovely send, message yeah. that she has conveyed. Thank you, Karan, for being here. Thank you It so was a much. great pleasure to chat with you. So here we close our episode of today. We'll meet soon. अगले episode में एक नया guest गुरसीमा के साथ और एक नई कहानी. Till then, keep watching and please do subscribe, share and like channel Gursima Preet Kaur with your host of Gursima's Gupshup. Thank you.